whatever the biochemical reactions are occurring in our body, is that is executed by enzymes. What is the directional growth in our body? It is done by hormonal protein. And what is the structure of cell? All cell organelles, they are membrane bound. So shape of cell is determined by, structural protein. बात समझ में आ गई? It is determined by structure. Okay. Now, what do you mean by hypotonic solution? Sir, जिसमें बाहर concentration है low और अंदर concentration किसकी concentration? water चलो अच्छी बात है, बोलो अनुराग. Sir, the concept of hypotonic, the solution in which the outer concentration is more than the inner concentration, and in this cell swells up, is called hypotonic solution, and the swelling up of cell is called hemolysis. What does it mean by hypertonic solution? the solution in which inside the cell water concentration is high and outside the cell water concentration is less. So from inside water comes out and cell shrinks. This is called This is called hypertonic solution. What is isotonic solution? solution in which the concentration of water is equal to both the outer and inner cells, and the amount of water leaks and enters is same, and There is no net movement of water, and it is called Sir, isotonic solution. What does it mean by plasmolysis? Okay. What is life process? बोलो सर, मैं तो आई भी नहीं और मैंने तो YouTube भी नहीं देखा, मैंने तो सर PDF भी नहीं पढ़ा, मैं कैसे कुछ बताऊं? आइए. There are several excuses. What is excretion? List the life processes involved in any organism. बताइए, list the life processes. reproduction, transportation, locomotion, excretion, transportation, reproduction, respiration, locomotion, digestion, Control and coordination. control and control. ओके. एंड ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, ठीक है, मूवमेंट हो सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज एक्सक्रीशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? So the process of intake of nutrients In order to and utilizing or it, like ठीक है, for their energy needs and utilizing it for their life processes is called nutrition. Okay. What are the three modes of nutrition? बोलो. Okay. That is, let us see now what are the various modes of nutrition: autotrophic, heterotrophic. सर दो ही होता है. Okay, let us see. Autotrophic and heterotrophic. What are the three differences? Now, देखिए, Sir, please आप जल्दी छोड़ सकते हैं. आप अभी जा सकते हैं. आप मैं यहाँ पे वैसा नहीं, किसी को फाउंडेशन नहीं है, ठीक है. ओके. अब देखिए, सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
mode of nutrition. So there are on the basis whether it is Autotrophic or heterotrophic? consuming the inorganic substance Or for their energy needs Heterotrophic, or autotrophic. organic substance. If it is taking inorganic substance like CO2 and water, तो उसे क्या कहेंगे? Autotrophic mode of nutrition. फिर तो आपने करवाया ना टेबल? ऑटोट्रोफिक और ऑटो, देखिए इसमें ऑटोट्रोफिक हो गया और इसी में अगर इसका सब पार्ट देखा जाए तो कीमोट्रोपी आ और जाए. फोटोट्रॉपिक? ठीक है, सो कीमोट्रोप और फोटोट्रोप इसके दो पार्ट हो गए. फोटोट्रोपिक सर मैं और डेफिनेशन दूसरा? बताऊं दोनों पे? कीमो, अभी आपसे पूछते हैं ट्रोपिक. ठीक है, अभी आपको जानना है, अदरवाइज मैं अभी पूछ लेता आपसे. नो सर नहीं है. ठीक है, अच्छा अब इसका दूसरा मोड कौन सा है? हेटरोट्रॉपिक. सो हेटेरोट्रोफिक. इसके दो देवांशी, तीन पार्ट हैं. what does it mean by heterotrophic nutrition? The organisms which depend on other हाँ, for their food. organisms. ठीक है, and it takes complex food inside. Whereas autotroph क्या करते हैं? They utilize simpler inorganic substance Like CO2 and H2 in the presence of and sunlight prepare and- their own food. बात समझ में आई कि नहीं? हाँ. वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं और जबकि इसमें क्या होता है? दे यूटिलाइज, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. और ये क्या करते हैं? These कैन नॉट प्रिपेयर, ये प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. कैन नॉट Prepare prepare their own food and totally Prepare- dependent on autotrophic. देयर ओन indirectly or directly dependent. फूड एंड Take डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक कॉम्प्लेक्स फूड. ठीक है, यही तो यूज करते हैं कि नहीं? एंड डायरेक्टली or indirectly. सर और- कॉम्प्लेक्स फूड कैसे होंगे? इनडायरेक्टली. वास्तव में जो सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? C6H12. और वरना प्रोटीन तो इससे भी हार्ड है. और सिंपलर कौन सा है? बताओ. CO2 और H2O क्या सिंपलर इनऑर्गेनिक है? Yes, sir. वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, वो तो बाहर में भी है. जो ऑर्गेनिज्म में बने, ये ग्लूकोज कहाँ बनता है? क्या ये फ्रूट्स में बनता है? फ्रूट्स में तो ग्लूकोज होता है. हर फ्रूट में क्या है? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज है. तो फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रक्टोज है, ठीक है कि नहीं? चीनी में ग्लूकोज है. अब देखो, तो ये और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर और देयर autotrophic. फॉर देयर एनर्जी नीड्स. And sustain their अब activity. ये Sir, बात इसके- बिल्कुल सही है. इसके 3 टाइप्स हैं. Yes, कौन sir. कौन से? Saprotrophic, parasitic and holozoic. ठीक है. So it has 3 types. Now, heterotrophic mode of nutrition जरा अब हम देखें. एक तो हो गया heterotrophic, ठीक है? Now, heterotrophic mode of nutrition में एक है सेप्रो. Trophic. सर आपने हेटेरोट्रॉपिक को थोड़ा गलत डिपेंड होगा ना, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ऐसा कुछ है? They Depend लिख लो ना. and depend. डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. एक हो गया जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल से या प्लांट से अपना खाना ले. दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम Dead and decaying डेड एंड matter. डिकेइंग Matter. ऑर्गेनिक मैटर. And they also are environmental cleaner. Yes, they are environmental cleaner and they extract food from dead and decaying Matter. organism. Sanitary inspector. सैनिटरी इंस्पेक्टर भी होते हैं. है बात कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? Yes. सो इस तरीके से सेप्रोफाइट. क्या प्राची आप मुझे किन्हीं 3 सेप्रोफाइट्स बोल दो. बैक्टीरिया एंड मशरूम. बोलो. फंजाई, बैक्टीरिया एंड मशरूम. सही है. एक और बताओ. ब्रेड माउल. जैसे ब्रेड माउल होता है ना, ब्रेड में उगाते हैं तो ग्रीन. फंगी हुआ ना. ईस्ट भी हो सकता है. Sir, microorganism. वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. ठीक है कि नहीं? तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? Sir, Fungi. fungi, bacteria, yeast, bread mold, बैक्टीरिया, yeast, ब्रेड माउल और इसी तरीके से yeast. यही सारे हो गए. और भी कोई था? Yes, sir. Mushroom. मशरूम हो गया. ठीक है. सर इसमें वो आ सकता है पिचर प्लांट.
पिचर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी रहती है, बस वो नाइट्रोजन के लिए किसी को खाता है। पिचर प्लांट तो से सर वो तो पैरासिटिक में आएगा ना। पिचर प्लांट जैसे हम लोग खाते हैं सेवन्थ वैसे में पढ़ा था ना सर, वो इंसेक्ट्स को खाता है। खा लेने दो। तो वो पैरासाइट नहीं, वो किसी पे आधारित नहीं है, वो अपना शिकार करके खा रहा है, अपने दम पे पैदा हुआ है, शिकार कर रहा है, जैसे शेर शिकार कर रहा है वैसे अपना कर रहा तो सर है। वो होमोफिल होगा। पिचर प्लांट पे नाइट्रोजन, जिस जमीन पर नाइट्रोजन की कमी रहती है, सो एट सच पोजीशंस आप देखेंगे पिचर प्लांट्स के तो ऐसे वीडियो खतरनाक है कि वो अमेजन पर देखोगे कि आदमी को उसी में निगल लेता है, ड्राइव कर ले, फट से दबा देगा। तो वो बहुत खतरनाक पिचर प्लांट है। हमने उसका खुद का भी वीडियो बनाया, हम उसको भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है तो आप देख लेना, कुछ इसीलिए उसको डेविल प्लांट कहते हैं, इतना खतरनाक। ये सर सेवन्थ में देखा था। पिक्चर प्लांट बोल रहे थे वीनस पिचर प्लांट को ऐसे ढक लेता है, ये वो तो वीनस फ्लाइट का था। वीनस फ्लाइट सर रहती है पिक्चर और प्लांट तो थोड़ा पूरा सारा भर जाए और ऐसे 3-4 कैटेगरी है। नाउ अब जरा वो दिखाई देंगे। अब देखो, एक सेप्रोट्रोपिक है, सेप्रोस और ट्रोपिक। सेप्रोस का मतलब क्या होता है? डेड। डेड। और दूसरा है पैरासाइटिक। Yes sir. Which take its nutrition from organism without killing them. Without killing them, it feeds on other organism and self remain guest and ठीक है on any host। तो खुद मेहमान है और दूसरे को मेजबान बना देता है, उसी के घर में बना देता, पड़ा रहता है, उसी का खाना खाता रहता है विदाउट किलिंग देम। ये हमारा जो पूरा प्लेटी हेलमेंथीज का ग्रुप है, तो सर ये तो फिर वो पूरा पेट का के कीड़े पूरा, भी नहीं हो सकते ये हैं। सब इसमें से किसी का भी नाम लिखो, ये हमारे पेट में सब मौजूद है, सबके पेट में। पैरासाइट है सर। हाँ, ये सबके पेट में है और समय समय पर ये सब ऑपरेशन दवाई करते भी हैं। लेते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन में। हाँ। ये देखो, ये क्या है? टेपवॉर्म, लिवर फ्लो, लिवर फ्लो। ठीक है? ये सब पैरासाइटिक और में ये सब आते है हैं। प्लेनेरिया, ये सब सर ये रियल है असली में। सब रियल है, ठीक है? तो अब उसको जरा बाहर निकाल सकते हैं। निकालने का नहीं, ऐसा अंदर से। है? अंदर से सर। कहाँ से? वो तो जैसे निकाला था तो निकल ही गया था। सर ग्लास के नहीं सर, ग्लास के अंदर से उसको रियल में मारना था। सर ये सब ये भी क्यों निकालोगे? हम तो इसमें जो है सर एक बार इसमें फॉर्मलिन सोल्यूशन जब चेंज करते हैं तो फिर ठीक है, तब हम बदल लेते हैं, बाकी तो हम भी नहीं निकालते हैं। पीछे निकालो, सर ये देखो, ये सबके पेट में टेप की तरह है, ज्यादा इसको हिलाना नहीं है, बस ऐसे देख के पीछे कर देना, इसका पानी भी निकल जाएगा। सर जो DNA टाइप का है। हाँ, तो इसलिए अरे वो सर तो नहीं सही। ये लो, ऐसे तो बाहर पढ़ ही नहीं पाओगे, आगे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। सर ये अरे ढंग से बोलो। सर ये हमारे पेट में होता है। ये रियल है, ये बायो स्पेसिमेन कहलाते हैं। ये देखो, ये प्लेन एरिया है, इट इज ऑल्सो ह्यूमन बॉडी में। हम देख लो, कभी ये मौका मिलता नहीं है, ये तो बाहर से धुले धुलाए हैं, इन्हें दिखा दो पीछे भी, ठीक है? तो पैरासाइट समझ में आ गया? दैट इज प्लेटी हेलमेंथीज। अरे ये बताओ। चलो, तो अब हम इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं? राउंड वॉर्म, कस्कुटा। बस पूछो। ठीक है, और हुक वॉर्म, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा का मतलब क्या होता है? अमर वेल। सर एक ही होते हैं अमरवेल और कस्क्यूटा। हाँ, समझ में आ गई बात? अमर वेल हो गया। सो पैरासाइट सर ये स्पायरोग्लाइडर है कि टेफ्लॉन है? में स्पाइरोगाइरा तो पानी के ऊपर जो हरी हरी काई होती है वो होती है। Yes. वो पर थोड़ी इधर है। तो स्पायरो का नाम वो पहले लिखा होगा। लिखा होगा, हमने बदल दिया। इसे बदलो। तो पत्ते जैसे सर ये तो पत्ते जैसे ठीक है, हाँ ठीक है। सो समझ में आ गया? सबके पास लिवर फ्लूक है, ये लिवर फ्लूक तो 2-2, 3-3 है दिखाया। हाँ, ठीक है। अब देखो, नाउ तीसरा क्या है? अमर, देखो अमर वेल जानते हो? ये से वो येलो कलर का ग्लास है। हाँ। यही अमर वेल है। और इसमें कौन कौन होते हैं? बहुत सारे ऐसे वो होते हैं क्या? जो कि उसके न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ये अमर वेल है, ठीक है? होलोजोइक का मतलब क्या है? जो किसी पे लिपटा रहे और उसमें से रूट्स निकली रहे और उससे प्लांट से पीता रहे। सर वो तो पैरासाइटिक हुआ ना। तो किसी का ही तो बता रहा हूँ। सर आपने
अब होलोजोइक, अब इसमें देखो ये सर कार्निवोरस, ओमनिवोरस और यस, हर्बीवोरस। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फूड लेके उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड, ये तो डेफिनेशन लिखाई है ना यस सर। होलोजोइक की। सो इसके अलग अलग है, हर्बीवोर, सर यीस्ट भी आएगा सेप्रोफाइटिक में। सर कार्निवोरस से हाँ कार्निवोरस, और ओमनिवोरस, कार्निवोर। अच्छा एक और बात बताइए, इसी में टॉप कार्निवोर भी हो सकते हैं ना? हाँ, Yes, जो कि sir. कार्निवोर्स को खाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये Human कह सकते हैं ईगल है, ईगल, वो उसमें स्नेक ह्यूमन भी तो आ सकते हाँ? हैं, ह्यूमन भी आ सकते हैं। टॉप ह्यूमन भी है, और तीसरा कौन सा है, ओमनिवोर। यस सर। तो Sir, दोनों खाते हैं सर, जो कि दोनों होते हैं हर्बीवोर हो और गया अनिता, है ना? नहीं सर, नहीं वो सेप्रोफाइटिक हो गया सर। ओमनिवोर। सर स्कैवेंजर्स सेप्रोफाइटिक हो गया ना। स्कैवेंजर्स जैसे कि ये वल्चर, हाइना। वल्चर, हाँ ये हाइना, ये सब क्या हो गया, मरी हुई चीजों सर को जो यीस्ट खाते हैं। सेप्रोफाइटिक में आ सकता है। अच्छा एक और इन्होंने नई बात बताई है, स्कैवेंजर्स जो होते हैं, सर एक बात, ईगल, वल्चर, हाँ ये सब इसमें आते हैं, सेप्रोफाइट, मरी हुई चीजों को जो खाते सर ये न्यूट्रिशन में लेते हैं तो खाते हैं। हैं। जिंदा, अगर जिंदा सर को एक खाएं, और होते सर। सुनिए, वल्चर क्यों हमारे वल्चर, यहाँ, हाँ। वल्चर गिद्ध, ये हमारे यहाँ से क्यों खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये मरी हुई चीज को खाते हैं, और अगर जहाँ पे साफ सफाई ज्यादा रहती है फिर वहाँ गिद्ध नहीं रहते हैं। सो स्कैवेंजर्स भी इसी में आते हैं, इट कम्स इन जो मतलब हमारे यहाँ पे सर एक बात पूछनी हाँ है। बोलो सर यीस्ट सेप्रोफाइटिक में आएगा। क्या, ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट सर, आ भी इसी में फंगी में है, फंगी का टाइप है। अच्छा अब जरा देखो कि ये तो सर वो पिक्चर प्लांट दिखा दीजिए। सर फोटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स आएंगे और कोमेटोट्रॉप, जो भी है, कीमोट्रोफ। केमोट्रॉप, उसमें अदर प्लांट्स। अच्छा अब देखिए आगे सर स्टेफिलोकोकस लिखा है पैरासिटिक में, तो गलत तो नहीं होगा क्या, स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारे टीथ में पाए जाते हैं, हाँ। जो क्या होते हैं डेंटल कैरीज करते हैं और डाइजेस्ट कर और देते हैं। डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये बाहर से और जैसे एक सर तरीके, फूड थोड़ी से ग्लूकोज लेते हैं। क्या? शुगर से शुगर को तोड़ते हैं एसिड डाल के, वो होलोजोइक नहीं है, तो वो क्या हमारी पैरासाइटिक है। सर कैशकूट और अमर पे देखिए। हाँ एक ही है। दूरी वाला। चलो तो दूरी क्या होगी? वही। चलो सर मैंने अमर में लिख दिया सर, कैशकूट नहीं लिखा पर अमर में एक ही लिखा। बात है। नो सर इंग्लिश में लिखा। अरे तो गलत हो गया ना, अमरवीर तो सर हिंदी नहीं है। सर मेरे को नहीं पता एक ही था। बात है। सर एक ही बात है। यस सर। सर क्योंकि आपने पता को हिंदी में भी हमें बताओ। नहीं ये क्या है ना, दोनों बोला जाता है यहाँ पर, बुक में भी आपके शान में अमर भेज देगा। सर वो तो समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखा है ना। चलो आनंदिता, जॉयफुल। बात अननेसेसरी मत करिए। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाइटर, ये देखो सर इसको कैसे खाता है? एक ही बात है। सर बिगेस्ट पिक्चर प्लांट लिख देना क्या देगा। सर ये देखो जैसे ही इसके अंदर ये आया तो ये बंद हो जाएगा क्या, फॉर्म भाई ये हेयर पिन की तरह है, इसने पकड़ लिया, अभी जाने देगा इसको। पिक्चर प्लांट नहीं है। पिचर प्लांट नहीं, वीनस फ्लाइटर है, लेकिन जैसे इसमें कोई कीड़ा है, ये देखो क्यों ऐसा किया, नहीं पाया, सर मुझे लगता था ये एकदम कैसे बंद हो जाता है। तुरंत ही बंद हो जाता है जैसे ही उसमें सर कोई एकदम टाइम। वो जल्दी नहीं हो रहा, एकदम मेरे को लगता था ऐसा मतलब झटके से बंद हो जाता है। झटके वाला भी है, साथ में सर अभी पिक्चर प्लांट है जो वो मेंशन कर रहे हैं। सेकंड्स के फ्रैक्शन वाले भी हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, पता नहीं लगने देते हैं, और थोड़ा इसमें स्टिकी सब्सटेंस भी है। और सर ये कुछ एंजाइम से रिलीज में करते सर हैं। इसमें जो हेयर्स होते हैं अंदर वो नीचे की तरफ फेसिंग होते हैं ताकि जो उसके अंदर इंसेक्ट है वो ताकि ऊपर को ना हो। अब देखो आगे देख लो, ये पिक्चर प्लांट। हाँ ये इसके अंदर चला सर गया, इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे की तरफ फेस करते हैं ताकि वो क्रॉल करके ऊपर चढ़ जा सके।
और कई बार जब ये अंदर चले जाते हैं तो उनको लगता है विंडो और कहीं है और वो और अंदर चलते चले जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो सोचते हैं निकले दूसरी तरफ से निकले और वो फंस जाते हैं। ऐसा हो सकता है, ये बात सही है। उसकी फ्रेग्रेंस होती है बहुत अच्छी और वो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है ताकि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और इसके अंदर फिर डाइजेस्टिव जूसेस अब ये सब ये देखो पिचर प्लांट मरे हुए हैं, अब इसको डाइजेस्टिव जूस में पड़े हुए हैं, अंदर जूस है उसमें ये गिरे पड़े हैं, डाइजेस्ट होते जाएंगे। धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे। उसके अंदर बहुत सारा प्लांट्स है। ये देखो अगर आप डीप में जाओ तो उसे लगेगा ये अंदर चला गया, इसे लगेगा कहीं और से विंडो है। देखो अंदर जाएगा वो निकल नहीं पाएगा, वो सोचेगा दूसरी तरफ और रोशनी है, वहाँ हल्का है वो भी मर जाएगा। अरे मान लेगा, देखो ना अब इसमें अभी हम इंसानों वाले दिखाएंगे, आदमी मर जाते हैं अभी सब है ना इसमें। ये देखो इसमें चला जाएगा और ये कितना बड़ा बड़ा है। चलिए बंद कैसे होता है? सर ये इसको वेज है खाने का। आएगा ये चूहे का तो बहुत डाइजेस्ट कर लेगा इसको, अब ये अंदर जाएगा और ये मर भी जाएगा। ये देखो हाँ सर ये क्यों आ गया। डाइजेस्टिव सर ये बोल रहे हैं इट विल डाई बाय ड्राउनिंग, मतलब उसके अंदर डूब के मर जाएगा। चलिए बनेगा कैसे? यही सब है। सर वो जो इंसान को निकल लेता है वो सब वो तो एनिमेटेड होता होगा। सर डरा रहे समझ नहीं आ रहा। सर इंसानों वाले दिखाइए ना। अरे नहीं थोड़े एनिमेटेड है फिर भी। हॉलीवुड की मूवी सर जो अंदर इसे नहीं जाने का कितना दिमाग है। डेविड पिचर प्लांट, ये तो कीड़े का हो गया। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ना कुछ डाल रहे हैं तो वो खा ले रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े भी हैं। सर ये दिखा रहे हैं, इससे मजा आ जाएगा। सर लाइट In the fine laws of nature, they are deadly plants. They will surprise you with the way they evolved to eat animals. Often with leaves that move in surprising ways, carnivorous plants grapple up insects from the misty jungles of Asia to the summits of Venezuela and find dangerous plants that are starved of nutrients, ready to prey on animals. Here we present the top 20 carnivorous plants that eat animals. Cobra lily. Like other carnivorous plants, it grows in places with very poor soil nutrients and other sustenance needs. The cobra lily is actually a lily and not a cobra. Its name is derived from its snake-like appearance, and the similarities don't just end there. Just like a snake, it prefers its food living. It's quite an ingenious plant that not only entices insects with sweet secretions to slip down its wall, but also has numerous false exits. Once inside, the insect is broken down by the digestive fluids and the plant absorbs the nutrients. Tropical pitcher. The tropical pitcher is among the different types of pitcher plants that create some of the largest carnivorous plants in the world. The giant pitcher inhabits the tropical forests in Malaysia, China, and Indonesia. It's also called a monkey cup because researchers noticed monkeys often drink rainwater from it. The nectar is well designed to catch unsuspecting insects and small vertebrates. The pitcher's inner walls have sweet nectar and wax-producing glands. Nectar lures the prey, while smooth wax slides them in. Fluid absorbs and digests the prey, and the plant ingests the nutrients. Bladderwort. This is a free-floating plant with no roots, but has flowers and rigid देखो stem. ये The सब तो bladderwort चलता leaves रहेगा। contain आपको साइट बता दी ना, घर में जाके देख लेंगे। चलो नाउ सीधी बात है कि हम लोगों का जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके का होता है। सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स से मिलके क्या बनता है बताइए। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वो एक ही बात है। और न्यूक्लिक एसिड भी आ जाए, ठीक है। ये सब चीजें हैं। न्यूट्रिएंट सब मिल जाएं तो क्या बनता है? क्या सेल?
हाँ सेल इज द बेसिक फंक्शनल, ये फर्स्ट लिविंग थिंग है, इसके पहले लिविंग नहीं है। अगर इसको इसमें आपने डिकम्पोज कर दिया तो उसके बाद फिर ये लिविंग नहीं है। सेल में से अलग अलग कर लो प्रोटीन प्रोटीन, तो क्या वो लिविंग है क्या? लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से ये है। सेल मिल जाए तो क्या? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन बोलो देवांशी। टिश्यू टिश्यू मिल जाए देवांशी तो क्या बने? ऑर्गन मिल जाए तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम के बाद और ऑर्गेनिज्म के बाद वर्ल्ड। ऑर्गन सिस्टम, ये बताओ ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कोई नाम बताओ। ऑर्गन सिस्टम लीवर, सर डाइजेस्टिव सिस्टम Digestive system, respiratory system, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या हो गए? स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ सर एनस, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सर लिवर ये सब इसके हो गए। अब जरा Pancreas. लीवर भी हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। अगर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल जाए तो क्या बनी? वर्ड नया ऑर्गेनिज्म, ये ठीक बता रहे हैं। पॉपुलेशन, दैट इज जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन। और अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें तो कम्युनिटी, कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी के साथ वो बाहर की चीजों से भी एयर ले, पानी ले, देश, ये सही करें। कंट्री, इकोसिस्टम, इनको इन्होंने ठीक बताया। इकोसिस्टम यानी अगर हम देखें तो मैन मेड इकोसिस्टम क्या है? जो आपके यहाँ एक्वेरियम है, वो पानी भी लेगा, उससे खाना भी लेगा, सर जू, समझ में आया? फार्म, गार्डन, जू, जैसे ये कह रहे हैं लू, कुछ बोल रहे हैं। हाँ? चिड़ियाघर, जू, जैसा इन्होंने बताया कि जू है तो वो भी हो सकता है। अब देखो इकोसिस्टम के बाद क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। तो ये पूरा जितना भी है हमारे चारों, ये जो जमीन है 1 मीटर नीचे तक, क्या उसमें जीव जंतु रहते हैं? उसमें कई तरीके के फाउना रहते हैं। हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर का बेल्ट कितना ऊंचा? ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर, उससे ज़्यादा कोई ऊंची चिड़िया नहीं हो सकती है। तो वो हो गया एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, पूरे का पूरा। बायोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर, ये सही बता रही हैं कि बायोस्फीयर के ही तीनों कंपोनेंट, सर एक्सोस्फीयर ठीक है। और जैसा इन्होंने बताया कि एक्सोस्फीयर में कोई नहीं रहता, और एक्सोस्फीयर, उसके नीचे थर्मोस्फीयर, उसके नीचे स्ट्रेटोस्फीयर, उन सब में कोई नहीं रहता, सिर्फ 500 मीटर तक रहते हैं। और 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर है, उसमें भी 500 मीटर तक। दैट इज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या है? सर इकोसिस्टम Sir, where abiotic and biotic components live together. यस, ह्यूमन मेड, मैन मेड सर्वाइवल, सुनिए जरा, which independently can survive only taking sunlight, they do not need anything। जैसे पॉन्ड, इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि पॉन्ड हो गया, वो बाहर से कुछ ना ले, सिर्फ सनलाइट एनर्जी के तौर पर लें, तो पॉन्ड अपना सारा काम कर लेगा ना। बाहर लगा दो कुछ जाएगा बाहर उसमें से, तो इकोसिस्टम हो गया। और इसी तरीके से कम्युनिटी क्या है? जैसे हम भी रहेंगे, कुत्ता तुम भी रहो, बिल्ली तुम भी रहो, तो ये सब हमारी जो चारों तरफ गाय, बिल्ली, कुत्ता है, ये सब हमारी कम्युनिटी है। समझ में आई बात कि नहीं? उससे पहले क्या है? पॉपुलेशन। बट हियर वी आर कंसर्न विद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? Yes, sir. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? 3 तरीके के सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? Circulatory. दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सपिरेटरी सिस्टम। 4 तरीके के सिस्टम हम पढ़ेंगे। फिर लाइफ प्रोसेस खत्म। यही है, सर एक्स ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन। सो फर्स्ट वी विल सी दैट इज, सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्या प्रोटीन का क्या काम होता है? हमें स्ट्रक्चर देना। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? Sir, break down into sugars of शुगर, हमें एनर्जी देना, ग्लूकोज देता है। ठीक है। फैट का क्या काम होता है? Sir,
सेल्स का रिपेयर और वो जो भी हो हमें क्या देता है ये? क्या फैट एनर्जी सर वो सेल्स के रिपेयर सर और फैट सर वो सेल मेम्ब्रेन सर फैट्स तो हमारे स्किन के नीचे की लेयर है ना, हाँ, जो और- हमें एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके हमारे सर, वो- टेम्परेचर में जो वो चेंज थोड़ा आता protect- है। यस दैट इज ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। उसके ऊपर वाली प्रोटेक्टर जो एडिपोज टिश्यू, फैट क्या है? 9th में पढ़ा हुआ है, एडिपोज टिश्यू है, वो हमें थर्मल इंसुलेशन दे रहा है। हाँ और फिर विटामिन इम्यून सिस्टम दे रहा है, मिनरल्स भी मिनरल्स मिनरल्स आर नीडेड, ठीक है। ये जो हमारे अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने की जरूरत है सेल के अंदर और बाहर, तो मिनरल्स की जरूरत है, सोडियम पोटेशियम, ये जो मिनरल्स हैं ये हमें क्यों लेने पड़ते हैं पानी के साथ? हम लोग जो डिस्टिल्ड वाटर नहीं पीते हैं कि सिर्फ H2O नहीं पीते हैं, उसमें न जाने कितने मिनरल्स, उसी का टेस्ट आता है मिनरल वाटर की। जितने मिनरल्स होंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मिनरल्स आर नीडेड सो दैट सेल पिचक न जाए, ऐसा ना हो जाए सिकल सेल एनीमिया हो गया पिचक के लिए, ऐसा ये ना हो जाए, सेल अपने शेप में रहे ना। तो एक पंप होता है, वो प्रेशर बना के रहता है। जैसे आपने देखा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए दूसरे आयंस भी तो होने चाहिए, डिहाइड्रेशन में सेल्स श्रिंक्स हो जाते हैं ना। श्रिंक हो जाएंगे। तो मिनरल से और न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बनता है। चलो अब आगे की बात करें न्यूट्रिशन में। हम लोगों ने टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिए हैं। Yes, sir. अब देखिए कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। सब कंपोनेंट ठीक है, The protein, carbohydrate, fat, A vitamin, minerals, nutrient nucleic can be acid. defined as substance. A substance which an organism obtains from its surrounding. And use it as a source of energy. will be like सोर्स ऑफ एनर्जी, वो जो भी बाहर से ले वो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। ओके, और बायोसिंथेसिस ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। क्या इन सब के बनाने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं? हम प्रोटीन क्यों खाते हैं? हम ग्रो करें। विटामिन क्यों लेते हैं? कोई बीमारी ना, सिंथेसिस हो रही, ऐसी कोई चीज बने, सिंथेसिस का मतलब निर्माण, ऐसी कोई चीज बने जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रही है, उसे कहते हैं बायोसिंथेसिस, Biosynthesis. ठीक है। और ऐसी कोई चीज जो हमारे अंदर इस रिएक्शन को तेज कर दे, बोले माल्टोवा पियो, कम्प्लान पियो, तो वो बायो कैटलिस्ट है। हाँ, क्या वो चीज को बढ़ा देगा क्या हमारे अंदर ग्रोथ को? उसके अंदर कुछ बायो कैटलिस्ट नहीं है। एनीथिंग, जैसे हमने भाई अमोनिया बनाया था तो Fe और मॉलिब्डेनम लिया था कि नहीं लिया था? तो क्या उसने उस रिएक्शन को तेज कर दिया था? तो वो एक कैटलिस्ट था। ऐसे ही कुछ चीज, हींग खा लो या कोई हाजमोला खा लो, तो Digestion digestion करो, वो बायो कैटलिस्ट हुआ। और एनीथिंग इफ यू आर टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट जिससे कि तुम ग्रो कर जाओ, तो क्या वो बायो कैटलिस्ट हुआ? इफ एनीथिंग इज टेकन, ठीक है, जैसा कि इन्होंने बता दिया कि बुकलू खा लिया तो वो हो गया, तो बायो सर ये कैटलिस्ट। चूरन होता है ना? जो भी हो, एक सर चूरन होता है? एक अच्छी जानकारी तो दी, टेक्निकल वर्ड उन्होंने बताया। डे टू डे लाइफ में सर यूज सर बताया तो दो। अरे हाँ? कुछ होता है। आज बोला ये जैसे कभी भी क्या है ना, कई मसालों को मिला करके ये सर बाबा जी का चूरन। हाँ यूपी में मिलता है, जिसको कि हाँ? हाँ उसको कानपुर में बनता है, कनौजिया बुक में, ठीक है। वो आपको उसमें भी मिल जाएगा, अमेजन में भी। Amazon में? हाँ। अच्छा। चलिए
ठीक है, अननेसेसरी का इधर उधर नहीं। तो आप समझ गए ना न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि इट इज बायोसिंथेसिस के लिए हो या हमारी एनर्जी नीड को फुलफिल करे। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं? इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, Fat, protein, Fats, protein, minerals, फॉर एनर्जी। और इसका एग्जांपल क्या है? C6, H12O6, जिसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज, ग्रेप से। ग्रेप का जो जूस है वो प्योर ग्लूकोज है, और बाकी जो दूसरे जूस सर हैं एप्पल ये सब में भी तो हो गए ना। किसमें? एप्पल सारे बाकी fruits में होगा ना। almonds उसमें फ्रक्टोज है। फिर भी चलो ठीक है, ग्रेप जूस ग्लूकोज है, समझ में आ गई बात? तो ग्लूकोज हो गया, तो इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट। इधर देखिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं कि हर सेंटेंस में पूछे तो हर चीज में बोलना ही है, आप सुनिए ज्यादा, ठीक है ना? और उसको बस ध्यान में रखिए। सो इट इंक्लूड्स ग्लूकोज एंड प्रोटीन। प्रोटीन किसके लिए? फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ग्रोथ ऑफ बॉडी, सर वो सब नहीं लिखने होंगे तीनों? ठीक है। फैट, हाँ सर। फैट किसके लिए? और to protect ourselves from ठीक है, environment. एनर्जी नीड्स इन इमरजेंसी, इमरजेंसी एंड गिविंग अस थर्मल इंसुलेशन। सर मतलब क्या होता है? हमको बाहर के टेम्परेचर से बचा के रखें। हम 0 डिग्री श्रीनगर में भी जाए तो हमारा जो 37.8 डिग्री का होम्योस्टेसिस है बॉडी का, वो मेंटेन रहे, यानी हमारे बॉडी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर रहे। सर कैसे? कांस्टेंट टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर, कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे रहे? जैसे ये एसी है, ये 25 डिग्री बनाएगा, उसी का ये महीने का 6000 ले रहा है। किस चीज़ का वो ले रहा है कि तुम्हारा बाहर 40 हो जाए, 50 हो जाए, 0 हो जाए, हम तुम्हारा 25 देंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी एसी है, वो 37.8 पे रहेगी। 37.9 होगा तो प्रोटीन खुल जाएंगे, हड़ताल कर देंगे। सीखने में 30 मतलब ये समझिए, अगर टेम्परेचर स्पेसिफिक है और मीडियम स्पेसिफिक है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर, सुनिए, हमारी बॉडी के जो प्रोटीन है वो बहुत नखड़े वाले हैं। अगर जरा सा टेम्परेचर डेविएट किया डिहाइड्रेशन, तो ये जैसा कह रहे हैं उसका स्ट्रक्चर खुल जाए और फिर वो काम नहीं करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो सर जब हमको fever आता है, टेम्परेचर मतलब जैसे आपका टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री भी हो जाए, 1 डिग्री भी बढ़ गया तो आप कहोगे खाना उल्टी हो रहा है, सर, decrease खाने हो में रहा है digestion नहीं होता है। डिक्रीज भी हो जाए, मतलब आपका टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाए, वो भी बड़े खतरे की निशानी, शरीर ठंडा पड़ने लग जाए। नहीं तो भी टेम्परेचर कम हो गया, दिखाओ। तो चाहे सर आपको ठंडा पड़ने पे कोल्ड हो गया ना। ठंडा, यानी अगर बॉडी के टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आएगा, देन इट इज अवर जो भी बॉडी है ना, उसमें एंजाइम्स काम नहीं करेंगे ना, वो डाइजेस्ट करेंगे फूड, ना हमारी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। क्या हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं? हाँ, नहीं, बायोकेमिकल, जो भी वर्ड हो, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोसिंथेसिस, बायोकैटलिस्ट, बायो जरूर लगा देना। सर आपने एक वर्ड बताया। बोलो, बात समझ में आई? सर हाँ। सर अगर हमको फीवर होगा तो फीवर आ रहा है, देन प्रोटीन दे विल सस्पेंड देयर एक्टिविटी एंड विल गो ऑन स्ट्राइक। सर प्रोटीन में आपने वो तीनों तो नहीं लिखा? सर एंजाइम्स। मीडियम का मतलब है अगर हमारी बॉडी का जो ज़्यादा एसिडिक हो गया और ज़्यादा बेसिक हो गया, तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बेसिक होती हैं, जैसे कटहल हो गई, बैगन हो गया। तो अगर कुछ भी है हमारे अंदर का मीडियम चेंज हो गया, बहुत नींबू पानी पी लिया, कुछ भी ऐसा आपने किया जिससे बॉडी का पीएच बैलेंस बदल जाए, यानी मीडियम बदल जाए, तो मीडियम जैसा चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारा चूना डाल दो पौधे में, तो क्या पौधा ग्रो करेगा? उसको जैसे मिट्टी चाहिए वैसे ही मीडियम में तो होगा कि नहीं? तो जैसे प्लांट्स को एक मीडियम चाहिए, उसी तरीके का यूरिया चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग तो अनाड़ी होते हैं, कहते हैं भैया 100 रुपए की खाद दे दो, प्लांट में डालना है। वो ये भी नहीं देखते उनके यहाँ की मिट्टी कैसी है। अरे अपने यहाँ की मिट्टी तो चेक करा लो जाके, ऐसी मिट्टी है, इसके लिए कौन सी खाद चाहिए? तो आपको जो खाद अनुसंधान केंद्र वाला है वो बताएगा कि आपका पीएच वैल्यू ये है, आपकी सीड में ये वाली डालो, इससे इसमें इसकी जो है कमी है।
सो उसको पूरा करो। मेकअप करना है कि नहीं? व्हाट इज द स्कैरसिटी इन दिस? ये तो नहीं है कि खरीद के डाल देते हो। तो वही चीजें ऐसे हमारी बॉडी में ऐसा तो नहीं कि कुछ भी खाने लग जाओ। Yes, sir. तो जो बॉडी में अगर मीडियम बदल जाए या टेम्परेचर बदल जाए तो प्रोटीन खुल जाते हैं। खुल जाते हैं। कौन से 3 तरीके के प्रोटीन है? Enzymes ठीक है, स्ट्रक्चर और तीनों है। सर तीनों नहीं लिखा। सो फॉर एनर्जी नीड्स इन इमरजेंसी एंड गिविंग अस, ये हम आगे बताते चलेंगे। एंड गिविंग अस थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन समझ में आ गया? हाँ। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो और वो जो लेयर है एडिपोज टिश्यू की वो अंदर और बाहर से अलग रखती है। हमारे अंदर 37.8 रखेगी या 98.68 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो बात समझ में आई? प्रोटीन में उन्हें लिखना क्या तीनों, बस ये लिखना फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। वो हम बाद में लिखा देंगे, अभी जब डाइजेशन पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। एंड गिविंग अस थर्मल इंसुलिन। इंसुलेशन, ठीक है, ये हमको इंसुलेट करती है, ये ऊष्मा की कुचालक है। अब जरा देखिए, ऐसे इंसुलिन नहीं है। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है? इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या दिखाया? प्रोटीन। भाई आप देख लो, आपके हमारी बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन है। बॉडी में प्रोटीन है। सबसे पहले भूकंप में आप दबे रह गए। देखो भूकंप में दबे रह गए तो क्या जितना कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ कौन स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये इन्होंने बताया है कि ग्लाइकोजन के तौर पर, क्योंकि इनका न्यूट्रिशन पढ़ाया गया भाई इसमें लीवर में, ब्राउन कलर का लीवर है। तो वेयर इट इज स्टोर्ड, ये देखो इट इज स्टोर्ड इन लीवर। लीवर इज द स्टोर हाउस। अब कार्बोहाइड्रेट कल भी हमने दिखाया था इस तरीके का ना, हाँ। लीवर अलग से उठा दे। हाँ। तो ये जो है इसमें ग्लाइकोजन के तौर पर इकट्ठा रहता है, यही चीज कंडेंस फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट आप ये देख लो, ग्लूकोज, सीधी सी बात है कि ये जरा देखिए कि C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है। अच्छा C6H12 में एक और जुड़ जाए, सुनो C12H22O11 और एक, H24 होगा ना। जरा देखिए एक वाटर निकल जाए, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। सुन तो लीजिए, समझिए, ये दोनों जुड़े, एक H इसने निकाला, एक H इसने निकाला, H2O निकला, मतलब आपस में जुड़े। एक ने OH निकाल दिया और एक ने क्या निकाला? और जुड़ गए। तो इससे बना केन शुगर। ये क्या है? और ये क्या है? अभी बताना। ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है, मोनो शुगर। हाँ। वो कहते हैं ना, ग्लूकॉन डी जान में जान डाल दे पीते ही। इसके पीने के बाद ये खट से टूट जाएगा, लेकिन चीनी खाओगे आधे घंटे बाद दौड़ना, क्योंकि उसमें पानी डालो तब टूटेगा। और पहले टूटे और तब उसके बाद उससे CO2 और वाटर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डाई शुगर है। क्या 2 शुगर मिलके बनी? बोलो। हाँ। तो ये इसका क्या नाम पड़ा? केन शुगर। केन शुगर गन्ने की चीनी है जो घर में रहती है। उसको भाई गन्ने की चीनी गन्ने से बनती है कि नहीं? सबके घर में रहती है, चाय में डालते हो। वो अगर फाँक लिया तो आधे घंटे बाद दौड़ना। क्यों? क्योंकि सबसे सिंपल शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज। ये इंस्टेंट एनर्जी देती है। और ये कितने घंटे बाद? आधे घंटे। ये जो होती है डाई शुगर लिखो। वैसे डाइसैकेराइड कहते हैं हम, सिंपलिसिटी के लिए आपको क्या बता रहे हैं? डाइसैकेराइड। और ये कौन सी है बताइए? सिंपल शुगर। बहुत अच्छा, मोनो। कितनी बात समझ में आई? पार्ट है। अभी देखिए सुनिए, अभी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहे हैं आपको। अगर C6H12O6 के 1000 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हो? N ले लो, जहां पर N किससे ज्यादा है? मोर देन 1000। और इसमें से सब में से एक वाटर निकालो। जब सब में से निकालो तो बोलो ये हुआ? ये सबको कंडेंस कर दो, जोड़ दो, सब है। तो अगर सबको कंडेंस कर दो और कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले? एक में से H2O निकला, देख लो, कम नहीं हुआ? हाँ। 2H और 1 कम हुआ। हाँ। और N में से N वाटर निकले तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल गए? 1000 निकल गए। ये मतलब क्या है? इसका मतलब है प्लांट 10% ग्लूकोज अपने लिए रखता है और बाकी सबको स्टार्च में बदल देता है, आलू में बदल देगा।
कहेगा इसको स्टोर में रखेंगे, इमरजेंसी में यूज करेंगे। तो स्टार्च है, ये क्या चीज है बताइए? अच्छा सर, ये पॉली शुगर है, चावल है, गेहूं है, ये कैसी है? पॉली शुगर। अब अगर तुमने स्टार्च खा लिया आलू तो 4.5 घंटे बाद दौड़ना। क्यों? पानी पीते रहो, क्योंकि इसको तो बहुत पानी चाहिए टूटने के लिए। पहले तो ये मोनो शुगर में टूटे, इसलिए सर बोलते हैं कि फिर जब ये मोटे हो जाएंगे टूटेगा आलू खाने से। तब फिर डाइजेशन होगा कि नहीं? से पहले डाई शुगर है फिर मोनो शुगर है। इसका बहुत पार्टिकल डाई शुगर में भी, अब जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे ये सब में टूटेगा। हाँ तो जब टूटेगा फिर इसमें टूटेगा, फिर उसमें टूटेगा। तो आलू खाया तो कितनी देर बाद दौड़ो? 4.5, क्योंकि वो पॉली शुगर है। पॉली- और डाई शुगर खाया तो आधे आधे घंटे बाद अब ग्लूकॉन डी पीते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये क्या, इसी को मैं ग्लाइकोजन कह रहा हूँ। ग्लाइकोजन। हाँ चेक करो, हमारी बॉडी में वैसे प्लांट्स में ये किस तरीके से इकट्ठा होता है? Starch. जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना सब में स्टार्च है। क्या चीज है? स्टार्च। फ्रक्टोज और स्टार्च किसमें किसमें होता है बताओ? सर आलू में So Rice, sweet potato wheat, में क्या है? पोटैटो, वीट व्हीट, एंड ऑल फ्रूट्स। ये ठीक है। और जो ग्रेप है, जो रसीले फल है उनमें ग्लूकॉन डी है, ग्लूकोज है। अच्छा अब जरा देखो, इतनी बात समझ आ गई? फ्रूट सर, इसको पीते ही ग्लूकॉन डी रहते हैं। क्यों बोलते हैं? वो उसका अलग अलग फॉर्म है, डी फॉर्म, एल फॉर्म है, वो कंपनी ने दिया है ना, लेकिन उसके अलग अलग हैं। वो हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पर थोड़ी सी क्रिएट करना पड़ेगा। अब अच्छा देखो, क्या यही फार्मूला ग्लाइकोजन का भी है? ग्लाइकोजन। प्लांट, liver में? भाई आप मुझे सीधी बात बताइए, प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? सर starch, मनुष्य अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? glycogen, कहाँ स्टोर करता है? liver, तो यही फार्मूला किसका हुआ? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन कहाँ पे बताइए? लीवर में। यही है स्टार्च, यही फार्मूला है। अब इन लीवर में स्टोर कर। अब जरा देखो, आप भूकंप में दबे रह गए, मान लो ये आदमी सर भूकंप सर में दबे। 30 days पे समझ लीजिए, सर भूकंप कैसे भूकंप का रियल वाला मतलब, भूकंप? हाँ, अर्थक्वेक में आप 20 दिन दबे रह गए तो क्या सारा स्टार्च, ये लीवर में जो ग्लाइकोजन जमा है वो सब खत्म हो जाएगा क्या? खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि यही तो जमा किए हुए है ना। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फूड कहाँ, रिजर्व फूड कहाँ है बताओ? लोग लीवर। 15-15 दिन तक जिंदा रह जाते हैं, लीवर में है। वो सारा ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन टूट के किसमें बदलेगा? बोलो, पॉली शुगर से। बताइए, बोलो जय। पॉली शुगर से डाई शुगर फिर मोनो शुगर। पॉली शुगर से इसमें बदलेगा, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी का सब वाटर भी एब्जॉर्ब सर करेगा। पॉली शुगर के एक बार बता देंगे? ये- पॉली शुगर का मतलब ये हजारों हैं और सब मिल के कंडेंस हो गए। सर पॉली शुगर ये वाला है ना? ये राइट। ये कंडेंस हुए। जब दो चीजों को जोड़ोगे तभी तो कुछ कंडेंस होगा। सर मोनो है, डाई और पॉली कौन सा? मोनो से डाई बना, और डाई और मोनो के 1000 मिल जाए या 1000 से ऊपर तो क्या बना? पॉली। पॉली शुगर। तो पॉली शुगर से एनर्जी डिराइव करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा बताओ? water, NH2O। C6H10 O5 N, और इसको खूब पानी पीना पड़ेगा क्या? बोलो। हाँ। और फिर क्या बन जाएगा बताओ? स्टार्च, सर मोनो शुगर। और फिर मोनो शुगर बन जाएगा। अब खट से सांस लो और ये CO2 और वाटर बदल जाएगा। हैं? वो डायरेक्ट मोनो शुगर से कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में होता रहेगा, डाई में होगा, और कई बार ये 10 के खंड में भी टूटेगा, उसे ऑलिगो शुगर कहते हैं। हम लोग उसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। डाई शुगर, ट्राई शुगर, टेट्रा शुगर, किसी में भी बदले, अंत में तो इसे यहीं आना है। और जब इसमें बदलेगा फिर क्या होगा बताओ? फिर तो इससे CO2 ले लो, और क्या ले लो बताओ? H2O। वाटर ले लो, और क्या ले लो? एनर्जी। एनर्जी ले लो। तो ये 6 हुआ कि नहीं? और N और नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ N है, सब नहीं नहीं लगा। लगा दे। तो 6N, और यहाँ भी क्या लगाओगे बोलो? 6NH2। हम इससे ज्यादा वो मतलब नहीं रख रहे हैं, लेकिन 4.5 आवर्स हमें खास मतलब वो बात समझ में आई? जितना पानी चाहिए टूट गया। और इसमें कितना चाहिए? डाई शुगर में बोलो half an hour. C12, ये कैसे रहता है? ठीक बैठ जाइए, O11। तो इसमें क्या दें, क्या चीज ऐड करें बोलो तोड़ने के लिए? सर H2O। जो निकला था वही दे दो, लेकिन इसके तोड़ने में भी समय लग जाएगा। C6H12 आधा। हाफ आवर। और ये बोलो क्या बन गए? C6H12O6 plus C6H12। C6H12O6 बन गए। और फिर इसके बाद ऑक्सीजन इसे दे दो, जैसे 6O2 मिलते थे कि नहीं? हाँ। तो 6NO2 नहीं दोगे? देख लो, 6O2 एक के लिए देते थे। Sir, 6 and क्या है?
भाई हम ये कह रहे हैं n से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, n मॉलिक्यूल है, हाँ तो सर 6 6 एक के लिए है, तो n मॉलिक्यूल के लिए कितना 10 होंगे तो 60 नहीं दोगे? 6 है और n यहाँ लिखना चाहिए कि नहीं? एक सर हम 6 ही लेंगे, कोई और नंबर नहीं ले सकते क्यों, रिएक्शन नहीं याद है क्या? रेस्पिरेशन, सर फिर एक रेस्पिरेशन, अच्छा हाँ फिर तो अब n के लिए कितना लिखोगे? 6 लिखोगे कि नहीं? बोलो, समझ में आ गई बात? अच्छा, ये बात हमने किसकी बताई? इट वॉज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट, कि हमारी बॉडी में जब हम डाइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे टंग से क्या टूटेगा? स्टार्च। बहुत अच्छा कहा। ग्लूकोज। देखो, स्टार्च टूटेगा। स्टार्च किसमें टूटेगा? शुगर। स्टार्च जो टूटेगा, शुगर ही बोल सकते हो, डाई शुगर, अमाइलेज। यहाँ पर एक एंजाइम बैठा है, वो अमाइलेज है। सर उसे केन शुगर भी कह सकते हैं। नहीं, वो एंजाइम है बॉडी का, उसका काम क्या है? सर शुगर को, वो शुगर को तोड़ना। हाँ, शुगर को तोड़ना। वो जो हमारे मुंह से लार निकलती है, दैट इज, ठीक है कि नहीं? सो इट इज ए काइंड ऑफ सलाइवा, एंड सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। उसमें क्या होगा? एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? सर सलाइवरी। और सर breaking down of starch. हाँ, So breaking down of sugar. सही है, क्योंकि हम स्टार्च ही तो खा रहे हैं। अब क्या खा रहे हैं? पोटैटो खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, व्हीट खा रहे हैं, तो उस स्टार्च को उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। ग्लूकोज, शुगर बोल सकते हो, ठीक है? दीज ऑल आर शुगर्स। कोई पानी शुगर है, कोई सर आपने प्लस के बाद क्या लिखा है? NH2। सर 6NH2 के प्लस के बाद क्या है? बोलो। सर ये सब एग्जाम में अरे सर लेकिन एक मन में समझ लीजिए, जो चीज होती है, हम ये कह रहे हैं रटना नहीं है, बस होता क्या है वो चीज समझ लीजिए, सर। फिर तो हम बताई नहीं। हाँ, सर वो क्या 6NHCO2 उसके बाद H? प्लस हाँ। n टाइम्स 38 ATP ऑफ एनर्जी। समझ आई बात क्या? एंडीनस एंड ड्राई सो सॉफ्ट। 38 n, ATP। बोलो, बात समझ आ गई? फिर इसमें भी यही हुआ। अब हम देखेंगे, बताओ जय, प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड। लो, ये बता दी। आप देर करिए, 1 सेकंड की देरी की, तो इसलिए इससे पहले कि दूसरा मामला लपक ले, आपको तुरंत बताना चाहिए, क्योंकि सरल था और इसीलिए हमने आपसे पूछा भी था। चलो दूसरा आपको चांस देते हैं। अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़ते हैं तब प्रोटीन बनता है? यस, जैसा कि जय ने बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम वो देख लिया कार्बोहाइड्रेट का, अब हम लोग जिस बारे में जय बात कर रहे थे उसको देखें, ठीक? सो पहली चीज क्या देख ली हम लोगों ने, इसे नोट कर लिया? सर माउथ में शुगर। यस सर हो गया। हाँ, ठीक है, ये देखो। सेकंड इज प्रोटीन, ये किसके बारे में है सर? कार्बोहाइड्रेट। दिस इज कार्बोहाइड्रेट, और इसका दूसरा नाम क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी। मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या टूटेगा भूकंप में दबे रहोगे? कार्बोहाइड्रेट। जब सब खत्म हो गया फिर तो क्या मर जाएंगे? नहीं, वाटर हो गया। अब हमारी बॉडी से फैट टूटेगा, अब हम दुबले होना शुरू हो जाएंगे। जब भूकंप में दबे रह गए, सारी एनर्जी खत्म, तो क्या हमारा फैट पिघलेगा? पानी नहीं पिएंगे, हमारी बॉडी का ही पानी यूज होगा, यूरिन नहीं गिरेगी, बस वो यूटिलाइज होता है। समझ आई बात की नहीं? और कुछ भी नहीं होगा, महीनों लोग जिंदा रहते हैं। तो पहले कार्बोहाइड्रेट टूटा, फिर क्या टूटा? फैट। फैट भी खत्म हो गया, हम बिल्कुल वहाँ दुबले हो गए, अब हमारी हड्डी का ढांचा बच गया। अब क्या टूटेगा? करेक्ट कह रहे हैं। So what is the order of decomposing the things? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर देखो फैट में हमने लिखा है कि नहीं, इट इज एनर्जी नीड इन इमरजेंसी, और ये भी खत्म हो गया। तो जब प्रोटीन डिकम्पोज होने लगेगा तो समझो अब बात, फिर अब तो सेल भी डिकम्पोज होने लगेगा, फिर तो आराम करो सर। ठीक है कि नहीं? सो इतनी बात समझ में आ गई आपको ना? सर एक बार बता दो पहले क्या टूटेगा और end? इनिशियली कार्बोहाइड्रेट प्राइम सोर्स, देन फैट पिघलेगा, प्रोटीन होना चाहिए ना, है? फिर प्रोटीन होना नहीं चाहिए। होगा पहले, फिर फैट होगा, ऑयल, आदमी दुबला होगा। अब क्योंकि प्रोटीन से तो सेल बनती है ना, अगर वही डिकम्पोज होगा तो सेल ही मरने लग जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? आप देख लीजिए कि सोमालिया में काम बिल्कुल दुबले दुबले पतले पतले लोग हैं। सर सर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसके बाद
कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इमरजेंसी में खाना नहीं मिल रहा 20 दिन से तो सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म, फिर क्या खत्म होगा? फैट, फिर क्या खत्म होगा? प्रोटीन। प्रोटीन। इतने में मतलब हो जाएगी और न्यूक्लिक एसिड नहीं टूटता। हाइड्रेट, फिर फैट और देन protein decomposes in our body. Protein decompose in body. अच्छा, ये बात तो हमने देख ली। अब इसे हम हटा दें, प्रोटीन के बारे में थोड़ी जानकारी दें। तो सर ये आप दो क्वेश्चन। ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। जो आपके बुक में है वो वही पूछा जाएगा। ये बुक में नहीं था। नहीं, ये सब लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, नहीं तो आप रटते रहोगे ग्लाइकोजन क्या है क्या, और उसमें तो गलती कर जाओगे। क्योंकि ये चीज पता होगी तो फिर सही रहेगा। अब ये देखो, कार्बन में एक ऊपर CH3 लगा है और ये क्या है H, और एक तरफ COOH और एक तरफ क्या लगा है मिथेनॉल। NH2। मिथेनॉल समझ में आई बात की नहीं? ये COOH क्या है? हाँ देखो इधर, ये पूरा क्या चीज है? क्या ये अमोनिया का फार्मूला है? क्या NH3, एक H हटा के सब लगाया है तो ये अमीनो हो गया। और ये किसी को मालूम है CH3COOH क्या होता है? एसिटिक एसिड या विनेगर होता है। एसिटिक एसिड जो चाउमीन में डाला जाता है और सब बिग बाजार और सब में मिलता है। खैर आजकल बिग बाजार तो फ्लॉप हो गया है। हाँ, अब ये देखो, हाँ ये देखो, रिलायंस ने ले लिया। ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो ग्रुप है और ये कौन सा है? एसिड। एसिड तो इसका पूरा क्या नाम हुआ? एमिनो एसिड। अमोनिया से अमीनो बना तो इसका क्या नाम है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। सर ये भी फूड में गिरता है ना? भाई अभी रुकिए, ये क्या है? प्रोटीन। अमीनो एसिड है। अब जय के बारे में बात आते हैं, जो जय ने बोला। जय ने क्या कहा था? जय ने कहा था कि दो अमीनो एसिड मिले तो जैसे N में 2H लगे कि नहीं? प्रोटीन बनेगा। और इस पे COOH में क्या लगा है बताओ? एक डबल बॉन्ड तो आपको सिखा दिया था कि नहीं? हाँ। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये COOH और ये क्या है? NH2 है। अब इधर क्या है बताओ? COOH बिल्कुल उसी तरीके का है कि कुछ बदला हमने? बोलो। सेम है। अच्छा, अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ग्लूकोज जो होता है कंडेंस होता है तो वाटर निकलता है। हाँ। इसमें से भी निकलना चाहिए। तो क्या इसमें से वाटर निकल जाएगा? यस सर। वाटर निकल जाए, निकाल दिया वाटर, तो क्या ये जो एमिनो एसिड मिल जाए तो इसी से प्रोटीन बन जाए? और इस बॉन्ड को इन्होंने क्या बोला था? पेप्टाइड बॉन्ड। बड़ी बात थी कि जय ने क्या कहा था? व्हेन एमिनो एसिड गेट कंडेंस, आपस में जुड़ जाए, मोती मोती जुड़ जाती है कि नहीं, माला बन जाती है, जैसे हम लोगों ने वीडियो देखा था। देन दे फॉर्म प्रोटीन, हंड्रेड्स ऑफ एमिनो एसिड। इसके आगे फिर एक और लिंक लगा दो तो फिर से NH2 नहीं हो जाएगा। सर ये चीज फिर से रखो, फिर यहाँ भी टूटेगा, लिंक हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अब जरा देखो, सर डेंजर क्यों बच्चे? अभी बताते हैं। ये दो एमिनो एसिड जुड़ गए यस सर। तो इधर से ये बॉन्ड भी और इधर किससे जुड़ गया बोलो? N से जुड़ा कि नहीं? यस सर, N और H। H लगा दो। CH। अच्छा, अब तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है कि जय ने इस बॉन्ड को क्या कहा? यही बात है, ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। नहीं तो पेप्टाइड लोग याद नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी पेप्टाइड। ठीक है, बात समझ आ गई? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। सो व्हेन 100 ऑफ एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इन्होंने तो नाम ही बता दिया प्रोटीन का, ये पता नहीं कहाँ, सब नेट का कमाल है। नहीं तो कैसे कोई बता दे पॉलीपेप्टाइड, यही प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड इज ओनली नोन एज प्रोटीन। हाँ। जैसे पॉली शुगर कहा था, ऐसे पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहते हैं। और दो मिले तो क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड। ये वर्ड भी आने वाला है आपके इसमें।
सर तो डाइपेप्टाइड। दो मिले तो उसे क्या कहेंगे, ये डाइपेप्टाइड है। लेकिन 2 से प्रोटीन नहीं बनेगा, 100 या ऊपर बनना चाहिए। यानी अमीनो एसिड है हमारी बॉडी में, सेल में अमीनो एसिड तैरा करते हैं, अभी हम दिखाएंगे वीडियो। तो वो सब मिल जाते हैं आपस में, और उनमें आपस में लिंकेज कैसा होता है, पानी निकलता चला जाए तो क्या वो जुड़ जाएंगे, एक से OH निकला, एक से H, तो बोलो ये C का इससे बॉन्ड जुड़ा, तो ये बॉन्ड जुड़ गया। अब ये 2 एक हो गए कि नहीं, वाटर तो रिमूव हो गया, तो अब इसी तरीके से एक और इधर है तो एक और नहीं जुड़ जाएगा। तो क्या इस तरीके से एक मोती की माला नहीं बनती चली जाएगी, ऐसे 2 हो और फिर और आगे चलता चला, इसमें फिर वाटर निकलेगा, इसका OH और अगले का H, तो इतनी बड़ी जो लिंक बनती चली जाएगी। So when hundreds of amino acids are linked with each other, Then it form polypeptide. यही है। और if hundreds of amino acid होंगे तब ये कोई काम करेगा। उसी को इन्होंने बताया, क्या बताया, Peptide bond. जैसे कि सेल्युलरी अमाइलेज, Amylase। लाइपेज, जाइपेज, जो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आहार नली में मौजूद है, इन सभी के बारे में हैं। हाँ। ये यही सब, प्रोटीन बनाते हैं। ये तो प्रोटीन है। और फिर इन्होंने बता दिया प्रोटीन खुद 3 तरीके के होते हैं। इसे Enzyme, हार्मोनल और एंजाइम। तो बेसिक चीज हमारी बॉडी में क्या है, सारा कारखाना किसकी वजह से चल रहा है, प्रोटीन। कुछ लोग ऐसे हैं जो दर्जी का काम कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन लगे, कुछ मोची हैं, जूते सिलना है, कुछ कपड़ा सिलना है, कुछ कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन काम सब कौन कर रहा है, प्रोटीन। असली काम कौन कर रहा है, प्रोटीन। लेबर कौन है, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी देना, उनसे एनर्जी का काम लोगों लेबर है। लेकिन टेक्निकल काम कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन। क्योंकि यही टेक्निकल काम पर खाना पचाना है, अच्छा। अब इसको यहाँ ले जाना है, उसको इसमें करना है, ये सब काम कौन कर रहा है, कोई हार्मोनल है, कोई स्ट्रक्चरल है, वो कौन कर रहा है, प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे, जैसे लगा दो लेबर की तरह एनर्जी में यूज कर। बात समझ आई कि नहीं? प्रोटीन शेक भी पीते हैं। चलो, अब जैसा कि इन्होंने बताया, इफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक विद ईच अदर with polypeptide chain, ठीक है, with peptide links, then it is called polypeptide of protein. and relation of भाई मुझे H2O। 2 प्रोटीन के नाम बताओ, प्रोटीन नाम बताओ, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। हाँ सर, जो कि स्टमक में होता है ना पेप्सिन स्टमक में है सर, जो कि उसकी inner भाई, body देख कर लो, देता है। और ट्रिप्सिन Liver and स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाँ। देख लो, स्टमक से कौन सा निकलेगा, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, सर इनर लाइनिंग बना देता है कि वो पेप्सिन करेगा क्या, लो ये सही बता रही हैं, फिर से सुन लो, ये भाई इनकी बात सुन लो, आप गजेंद्र समझ लीजिए, पेप्सिन स्टमक में है और ट्रिप्सिन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर से सुनो, प्राची ने क्या बताया, बोले हम लोग एनिमल का प्रोटीन खा रहे हैं, उन्हीं में तो सब दाल हो रहे हैं, और ये प्लांट का खा रहे हैं, लेकिन प्लांट लोग चलते हैं क्या, नहीं सर, लोकोमोशन लोकोमोशन नहीं करते, तो फिर हमें प्लांट का प्रोटीन तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, क्या वो हमारे लिए फिट है, नो सर। और फिर से हम उस अमीनो एसिड की नई नई लिंक बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जो अमीनो एसिड है वो टोटल कितने तरीके के हैं, 20 तरीके के, और ये सिंगल नहीं है, कितने तरीके के हैं, 20 तक। तो अब ये अलग अलग तरीके के प्रोटीन है और इनका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, क्या हम वो ऑर्डर हमें चलेगा, हमें हम कहेंगे भाई उससे तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, क्या हमें एक जगह खड़े रहना है, क्या नहीं खड़े रहना है, तो जैसा कि प्राची ने कहा यही पेप्सिन तोड़ देगा, क्या माला से पटक के बिखर जाओ, और हम नया बनाएंगे, उससे लोकोमोशन करेंगे, बात समझ में आई, हाँ, ये तो ये सर। क्या करेंगे? मतलब ये प्लांट animal- प्रोटीन को हमें तोड़ना है और एनिमल प्रोटीन बनाना है, उनको फिर से अरेंज करना है, सारी लाल लाल मोती एक जगह हो जाए, ग्रीन अलग, ब्लू अलग, एनिमल बनाएंगे, फिर दौड़ेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। सो अब मुझे ये बता दो, तो ये प्लांट में होता है। पेप्सिन क्या करता है, सर, ये इट डाइजेस्ट प्रोटीन, अब प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा, अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन क्या करता है, वही काम, कुछ बचा रह जाए प्रोटीन तो वो करते हैं। उसको तोड़ देगा, बोलो बात समझ आई, नहीं समझ समझो, ये एक हमारे अंदर प्लांट का प्रोटीन आ गया, हमने खा लिया, दाल खाने का प्रोटीन ही नहीं खाना है, लेकिन क्या वो हमारे लिए फिट है, नो सर। वो हमारे किसी काम का है, पहले दाल को डाइजेस्ट। क्योंकि वो तो चल फिर नहीं सकता, दाल वही प्रोटीन से क्या हम चल फिर लेंगे,
हमें अपना नया लिंकेज बनाना होगा, नए प्रोटीन जिससे हम सोच सकें, सब कुछ कर सकें। तो क्या उन्हें तोड़ना पड़ेगा और उन अमीनो एसिड को फिर से जोड़ना पड़ेगा। डीएनए ये काम करेगा, ये डीएनए रखा है, इसके पास माइंड है कि कैसे जोड़ना है, इसका यही काम है। क्या आपने देखा था न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस था, उसमें राइबोसोम पीले पीले निकल रहे थे, वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बैठे थे और उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था और वहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ था, निर्माण। क्यों? वहां पर जाके अमीनो एसिड इकट्ठा होंगे जो यहाँ पे तोड़े गए, सुखाएगा, ब्लड कहेगा चलो सारे अमीनो एसिड अब सेल में चलना है। वहां चल के आपको वहां पर सेल के अंदर रहोगे तो राइबोसोम बैठा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वहां तो नए प्रोटीन बनोगे, तब शरीर के काम आ सकोगे। तो डाइजेस्ट होके क्या जाएगा बताओ? ब्लड के थ्रू प्रोटीन नहीं जाएगा, अमीनो एसिड। अच्छा और बनेगा कहाँ? या सेल में बनेगा नया एनिमल प्रोटीन कि वहीं पेट ही बन जाएगा। हाँ बोलो। सर अमीनो एसिड मतलब राइबोसोम सीक्रेट करता है। अमीनो एसिड राइबोसोम ही सीक्रेट होगा। देखो अभी सुनो, यहाँ पर जो क्या खाया आपने? प्लांट प्रोटीन खाया? दाल खा ली। दाल क्या है? प्लांट प्रोटीन है, वो हमारे काम का है। अच्छा, तो यहाँ कौन सा पेप्सिन एक एंजाइम, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन प्रोटीन नहीं, ये बात गलत हमने बताई। मतलब पेप्सिन तो क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम खुद भी प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम वैसे भी प्रोटीन होते हैं, सारे एंजाइम हार्मोन ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन। चलो अब पेप्सिन ने क्या किया? तो बनाया क्या? भाई मोती की माला टूट जाए, अभी आप कहाँ से फिर से बनाने लग गए? अभी तो डाइजेस्ट हुआ, टूटी है माला। अमीनो एसिड बन गया, तो अब अमीनो एसिड जो इसमें बन गया वो आगे बढ़ा, पेप्सिन ने तोड़ा और फिर इनकी बात सुनो, कह रहे फिर भी बचा रह गया। तो इंटेस्टाइन में फिर क्या हुआ? ट्रिप्सिन। कहीं पर इंटेस्टाइन में तोड़ा गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें ट्रिप्सिन कहाँ से आया? स्मॉल इंटेस्टाइन। लो ये इन्होंने सही बता दिया। इन्होंने बता दिया कि ये जो स्टमक है, ये स्टमक ही तो है, स्टमक में पहले से पेप्सिन था और इसके नीचे ये निकल रही क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इन्होंने बताया, बोले इसी पैंक्रियास से ट्रिप्सिन गिरा है। सामने तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ये स्टमक से बात ये कहाँ खुलेगी? नली, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल नहीं निकलेगी। यस तो उसमें ट्रिप्सिन कौन भेजेगा? पैंक्रियास। ये है पैंक्रियास, इसी का काम है ग्लूकोज को तोड़ना। इंसुलिन आता है कि नहीं? हाँ। जिसमें किसी में डायबिटीज हो जाता है तो ग्लूकोज नहीं टूट पाता है, तो ये क्या काम करता है बताओ? इसमें इंसुलिन भी है और इसी पैंक्रियास से, इसको कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय, क्योंकि अग्नि पैदा करता है, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी पैदा करता है। खैर ये इससे बहुत कुछ काम होता है। इसी से क्या चीज निकलती होगी? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन कहाँ जाती होगी? और वहाँ क्या करती होगी? यही बात है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि पैंक्रियास से जो है वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी निकलता होगा, क्योंकि पता नहीं कोई मोनो शुगर ना, कोई पॉली शुगर ना रहेगी, उससे भी तो तोड़ना है। बोलो बात सही है कि नहीं? तो पैंक्रियास से कौन सी दो चीजें निकलती हैं? अमाइलेज। सुन लो, जो हमारी सलाइवा से अमाइलेज निकला था शुगर को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट सलाइवरी था, और जो यहाँ से निकला उसे कहेंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती हो कि हमारे अंदर जो फैट है उसको भी टूटना चाहिए? फैट है, इतने बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल हमने घी खा लिए, चम्मच चम्मच बटर, वो भी टूटने चाहिए। इसी के अंदर से लाइपेज निकलेगा। 3 चीज हो गई है। फैट को भी टूटना है, छोटे छोटे फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि फैट किससे बना है? आपने डेंसिटी चैप्टर पढ़ा है? डेंसिटी में फैटी एसिड है, वही फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते होंगे? फैट। लेकिन फैट को तोड़ लो तो उल्टा क्या हो जाए? ये बता दो मुझे, फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड में कौन बदलेगा? पैंक्रियास से कुछ निकलेगा। आगे मैं थोड़ी देर थोड़ा भूल गए। लो ये बता दी, लाइपेज। अब ये बता दो 3 कौन सी चीज इससे? पेप्सिन तो नहीं,
पैंक्रियाटिक amylase और और like लाइपेज क्या करेगा? Sir, I love fatty acids to fatty acids. फैट को Fatty फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। ग्लिसरॉल भी थिक होता है, अभी हम दिखा देंगे रखा हुआ। फैटी एसिड्स होता है बटर। और सर एमिलेज क्या करता है? हैं? अमाइलेज बताओ, सेलेवरी अमाइलेज ने क्या किया था यार? स्टार्च लाइपेज क्या करेगा? सर So fatty acids वो तेल को तोड़ेगा। लाइपेज किसको तोड़ेगा? हाँ, फैट। ऑयल को। ठीक है कि नहीं? फैट को चलो। तोड़ेगा फैट। सर अब हमें सिर्फ एक लाइन यहाँ और लिखनी है कि hundreds ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड विद पेप्टाइड चेन, है ना? पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड फॉर्म, और हाँ, protein। ठीक है, फॉर्म प्रोटीन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सर आपने क्यों बोला था दाल वो नहीं है क्या? देखो, दाल है प्लांट प्रोटीन। आपकी बॉडी में प्लांट प्रोटीन काम करेगा क्या? हम कहेंगे भाई हम जो है बोले फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर लिया करने, चलो इसमें हाई फाई टीवी चलाया जाए, तो चल पाएगा? 10th जनरेशन का चाहिए, तो प्लांट प्रोटीन से तुम दौड़ लोगे क्या? तुम्हें तो एनिमल चाहिए ना, सब नया प्रोटीन चाहिए। हम लोग मोर मॉडिफाइड हैं, वी आर मोर कॉम्प्लेक्स, वी आर नॉट एज सिंपलर एज प्लांट्स। Yes. So is plant protein is sufficient for us to do? So we are finer instrumental. तो इस वजह से हमें क्या चाहिए? हमको एक एनिमल प्रोटीन चाहिए, नई व्यवस्था क्रम चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए हम पुरानी चीज़ों को तोड़ेंगे, उसी को तो डाइजेशन कहते हैं। देखो, इंजेशन हमने क्या किया खाने को? इंजेस्ट किया, पेट में क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो जाएगा सेल में, सेल को दे दिया जाएगा, वहां पर उसका समंजन होगा, एसिमिलेशन, और फिर उसके बाद जो भी वेस्ट है, एसिशन। 5 चीजें बताओ क्या क्या है सर न्यूट्रिशन? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। अरे वाह, एसिमिलेशन का मतलब है वो हमारे खून का हिस्सा बन जाए, हमारे बॉडी में चला जाए, सारा एमिनो एसिड वहाँ चला गया ना सेल, अब सेल को समझ दिया, समझो एसिमिलेट हो गया। सर लार्ज इंटेस्टाइन जैसे वाटर का बोलो absorb पाँच कर लेता Sir, ingestion, digestion, absorption, assimilation, excretion. सही है? अच्छा देखो, hundreds ऑफ, देखो hundreds ऑफ कौन? है एमिनो एसिड linked with polypeptide bond. लिंक, ठीक है, लिंक विथ पेप्टाइड बॉन्ड लिखो, फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड ना, वो आपस में किससे जुड़े हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्म Protein. प्रोटीन, Tiny protein या iron protein? बोलिए, इसी को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। Sir, TI या फिर TI N? Sir, peptide. डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड है, 2 मिल गए, पेप्टाइड बॉन्ड से 2 जुड़े तो डाइपेप्टाइड, Dipeptide. और वैसे 100 जुड़ गए, देन इट इज फंक्शनल। ओके, नाउ ये तो प्रोटीन बन गया। प्रोटीन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये भी यही है। प्रोटीन्स Are of 3 types: structural, hormonal, and thermal. आर स्ट्रक्चरल, हार्मोनल एंड एंजाइमल। ठीक है? प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड बाय पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। बोलो बात सही है? Yes, पेप्सिन ये एंड भी terminal की बात Some करो। proteins are broken down by trypsin and trypsin इनटू into amino acids. सही, इस चीज को लिखो। और सर एट पेप्सिन एट स्टमक एंड ट्रिप्सिन एट स्मॉल इंटेस्टाइन। वो हम लिख लेंगे, प्रोटीन्स आर सर ट्रिप्सिन पैनक्रियाज में करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड बाय पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। इतनी बात समझ आ गई? ये तो प्रोटीन के बारे में है, ठीक है? इस चीज को नोट कर लिया क्या ऊपर का? यस सर। अब देखिए, सर ट्रिप्सिन कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या पैनक्रियाज में? हाँ सर। बोलिए। कहाँ करता है सर, पैनक्रियाज में या? ट्रिप्सिन, यस सर। ट्रिप्सिन हमारे पैंक्रियाज में होता है। नहीं सर डाइजेशन मतलब Sir, ब्रेकडाउन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है ना।
रिलीज तो पैंक्रियास से होता है, लेकिन उधर जाके इंटेस्टाइन में तो करेगा। सो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें हैं। न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन और लिखो इसमें, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। दो लाइन भी जैसे न्यूक्लिक विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि इसके बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी। ये दोनों चीजें लिखो, सही है। अगर आप वहां से दिखता है विद्या, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया आपने। अब ऊपर का देखिए, एक चीज और लिखी है कि आप देखो कि फैट किससे बने होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके क्या बने होते हैं? फैट बने होते हैं। बात समझे? ग्लिसरॉल हमारे पास रखा हुआ है जो बहुत ठीक होता है। कहाँ से रख दिखाया? ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ये जैसे छाले हो जाते हैं तो हाँ। लगाया जाता है कि सही नहीं? बात। ग्लिसरीन है जो कभी हम लोग कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं, मिलाते हैं, गुलाब जल मिला के कुछ बनाते हैं। तो ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है। ये क्या है बताइए? ग्लिसरॉल। सही, ये पूरा ग्लिसरॉल है। हाँ, ये ग्लिसरॉल है। सही, ये पूरा। या फिर सिर्फ वो सिर्फ लास्ट? ये पूरा, जिसमें 3 OH हों, हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 बेस होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 बेस होते हैं। और इसी में फैटी एसिड अगर मिल जाए, क्या मिल जाए? C17H35COOH। तो ये H और OH सब में से निकाल सर, देगा। आपने बीच भाई वाले देख लो, में 2 नहीं लगाया। अब ये देख लो, सर, क्या वो बीच वाले 2 नहीं लगेगा ना, क्योंकि एक कार्बन की कितनी वैलेंसी है? सर वो क्या है? एक दो तीन चार। बोल बात समझे सर वो क्या है इसमें? भाई? आप ज्यादा ना समझे, बस CHOH है। हाँ, ये क्या है? ग्लिसरॉल। कोलेस्ट्रॉल। और सर ये है, ये साबुन होता है वास्तव में। अगर मैं Na लिख दूं, सोडियम, ठीक है, स्टीयरेट, ये लाइफबॉय साबुन। लाइफ बॉय साहब। हाँ, अगर आप पोटेशियम हो तो रेक्सोना, सर सोडियम के साथ रेक्सोना, हमाम। मतलब आप लोग जो लग्जरी सोप होता है, लग्जरी सोप जिससे नहाते हैं, हाँ, ये तो वो पोटेशियम के होते हैं। और कुछ कार्बोलिक सोप होते हैं जिससे ग्रीस इस लगी तो हाथ साफ करते हैं, वो कार्बोलिक है ना, रफ सोप। तो लाइफबॉय साबुन नहीं कभी देखा? हाँ, ये तो लाइफबॉय है और वो सब है। तो अब इन दोनों ने मिले, तो इन दोनों ने मिलके क्या किया बताओ? देख लो, अभी ज्यादा आपको सोचना नहीं है। ये ग्लिसरॉल है और ये क्या है? फैटी एसिड। मुझे 3 लिखना चाहिए था, लेकिन मैं तीनों को अलग अलग लिख रहा हूँ। तीनों को अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इन तीनों में से अगर एक H निकल जाए और इससे OH निकल जाए, और इससे भी एक H निकल जाए OH, और इससे भी एक H निकल जाए OH, तो ये क्या बन जाएगा? BH2O। ये ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड। हाँ, ये क्या? अच्छा, इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी देखते हो? इन दोनों का एक ही फार्मूला है, CnH2n+1 और COOH। देख लो, करके देख लो। 1 है, हाँ, 1 डालो तो क्या 3 आता है? बोलो, yes sir। देख लो, 1 डालो है ना, CH3COOH। 1 डालोगे तो कितना होगा? 2 1 जा 2 + 3, और 17 डाल दो तो कितना आएगा? चेक करो, 17 2 जा 34 और +1 कितना हुआ? सर वहाँ 35। से 35 क्यों लिखा? H35। मेरा कहने का मतलब है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल जाए तो क्या बने? फैट बनेगा, बस यही फैट। फैट। इतना याद रखने की जरूरत है। हैं? ऐसे से ड्रॉ मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए और क्या बन गया? फैट। इस चीज को हम लोग कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जानकारी के लिए रख लो कि ये ग्लिसरॉल है। कुछ नहीं बस, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि किन दोनों के मिलने से फैट बनता है। ये बता दो। कुछ नहीं है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अगर फैट टूटे तो क्या बन जाए? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। निकल नहीं? लिटेज से। अच्छा ये बताओ, पानी के निकलने से फैट बना और उसमें पानी डाल दो फैट में तो टूट जाएगा कि नहीं? Yes. वापस फिर टूट, पानी निकाला तब तो फैट बना, कंडेंस फॉर्म है ना फैट, और उसी में पानी डाल दो जैसे हम लोग इसमें कर रहे हैं। भाई आप देख लीजिए, कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि प्रोटीन को बहुत सारा पानी दो तब जाके वो एमिनो एसिड में हाँ। टूटेगा। पानी निकलने से बना है प्रोटीन।
आप खाना खाने के बाद पानी बार बार क्यों पीते हो? डाइजेशन के लिए प्रोटीन भी आपको तोड़ना है, फैट भी तोड़ने के लिए पानी चाहिए। हर चीज। ग्लूकोज अब- तोड़ने के लिए। जो सही बता रहे हैं, हाँ। वो जो पॉलीशुगर उसको हर चीज को तो पानी से चाहिए आपको तोड़ने के लिए, नहीं चाहिए क्या? और फिर वो जब ग्लूकोज बना क्या, उसको तोड़ने के लिए फिर से पानी चाहिए, उसमें भी 6H2O चाहिए, हाँ। इसीलिए तो पानी पीते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes. तो अच्छा इतना बता दो कि फैट अगर टूटेगा तो क्या क्या बना, बस हमें ज्यादा नहीं। तो मैं बताऊं? Please बताओ। अच्छी बात तो मैं है? कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी बात समझ आई? अब एक चीज और हम आपसे पूछेंगे, तो इतना बता दो फैट को तोड़ेगा। सब वाटर उसमें सर वो पैंक्रियास वो थोड़े सर लिप्स लाइपेज बस पैनक्रियास से सिक्रेट और स्मॉल सही है। वैसा जय ने भी बताया था, लेकिन बहुत धीरे से बताया था कि कोई सुन ना पाए। सर लिपेज होता कहाँ पर है? हैं? इसी में पैंक्रियास में अच्छा, और ट्रिप्सिन भी उधर ही होता है। ट्रिप्सिन, और तीसरा अमाइलेज। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, तो हम लोग यहाँ पर लिख लें कि लिखो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है, आफ्टर कंडेंसेशन। ये क्या कर रहे हैं? आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O। वाटर है ना, सो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आफ्टर कंडेंसेशन, जुड़ गए। ये क्या बनाते हैं? फॉर्म फैट, एंड फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू इट अगेन। फैट को तो तोड़ के देना, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल तो नहीं जाएंगे सेल में, सेल की मेम्ब्रेन ही नहीं ले पाएंगे अंदर। सर इसमें एग्जाम में नहीं आएंगे डायग्राम? डायग्राम एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इसकी कुछ नहीं आएगा। बस आप आपके फैमिलियराइजेशन के लिए किससे क्या बनता है, ठीक है, ये चीज आगे मन में रह जाएगी। ठीक है, सो मतलब इट इज वन स्टेप अहेड जो आप पढ़ रहे हैं। तो सर आप एग्जाम में लेंगे क्या? हम जो बुक में लिखा है वही लेंगे, चाहे छोटा पेपर है। बुक के अलावा एक वर्ड नहीं है। बुक के क्वेश्चन है, बुक का जो है, बुक का जो पढ़ाएंगे वही है। बात समझ में आई? डायग्राम में सब लिखा और कल भी साइंस की क्लास है। है। ओके सर, सर। तो मैथ्स सर, ले लो, ले लो। मैथ्स ले लो, सर मैथ्स ले लो, क्या? मैथ्स ले लो। चलो, तो कौन सा चैप्टर? कल हम लोग लीनियर उसका करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर। थर्ड आप सुबह चाहिए क्लास के? नहीं, सुबह नहीं है, तो शाम को। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आफ्टर कंडेंसेशन, ये क्या बनाते हैं? फैट फैट बनाते हैं, एंड फैट इज ब्रोकन डाउन। into glycerol and fatty acid after देखो। water is added to it. Fat is broken down into glycerol and ये तो fat. सेम ही हुआ ना भाई सर? आप देख लो, सो उनके जुड़ने से ये बनता है पाइलाइपेज कौन बनाता है? इसको कौन तोड़ता है? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम। Found जो in pancreas. अब ये बताओ कि माउथ में कौन सा एंजाइम Amylase. सेक्रेट होता है? और Amylase. और सही है, तो ये सब एंजाइम्स हैं। ये जितने भी नाम लिख रहे हैं, तो एंजाइम कौन सा सेक्रेट होता है और उसका फंक्शन क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। प्रतिक्रिया अगर बता दोगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता सर है? मैं बताऊं? ठीक है, सही है, मतलब ग्लूकोज। ठीक, चलो, हेलो, किसको? ठीक है, नीचे हैं आप क्या? ओके ओके, ठीक है, मैं भेजता हूँ। तो अभी फोन आया आपके घर से, गाड़ी ना। सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है? सर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। और सर इसका एक और होता है सर, वो फूड को कवरिंग दे देता है लिक्विड का जो ब्रेक डाउन।
ये क्या करता है? breakdown of starch into sugar. स्टार्च इनटू ग्लूकोज, इसमें तोड़ता है बताओ? ग्लूकोज में तोड़ता है और उसको क्या देता है? Covering में एक देता है. बेसिक मीडियम बनाता है एंड मेक्स द फूड Basic बेसिक का in मतलब nature. OH, बेसिक का क्या मतलब है? जिसमें OH. जैसे NaOH क्या है बताइए? बेसिक है कि नहीं? Basic in nature. जो साबुनी हो, साबुन जैसा फिसलने वाला, वो हम बाद में दिखाएंगे फूड को बेसिक सर बनाना। चाय अभी नहीं, ठीक है। माउथ में आ गए, स्टमक में बता दो क्या होता है? सर पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, एमिनो एसिड. पेप्सिन क्या करता है? एमिनो एसिड तोड़ता है. प्रोटीन को एमिनो एसिड. प्लांट प्रोटीन. प्लांट प्रोटीन ब्रेक डाउन प्रोटीन, ठीक है, प्लांट प्रोटीन भी लिख दोगे तो सही है, इनटू एमिनो एसिड। और अच्छा, स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, वो बैक्टीरिया को मारता है क्या? हाँ सर, इसके लिए म्यूकस होता है. सर जो कि वो तो ठीक है, उसको बचा के रखता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन को acid. एक्टिवेट करता है। इसको एक्टिवेट करता है. पेप्सिन, पेप्सिन को मीडियम देता है कि वो काम करे। और सर digest- एसिडिक मीडियम देता है। सही बात है, देखो, किल्स बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट, जैसा कि इन्होंने बताया, एक्टिवेट पेप्सिन। अगर एसिडिक मीडियम ना हो तो क्या पेप्सिन काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब जरा देखो कि सर HCl से पहले ऑर्गन क्या निकलती है? क्या ये स्टमक से में ये है। HCl हाँ। और इसमें स्टमक से एक म्यूकस निकलता है। कभी आप लोगों को नोज फ्लोइंग हुआ है, रनिंग नोज? हाँ यस उससे जो म्यूकस निकलता है वही वहां पर भी कहाँ पर है? है, स्टमक में। हाँ. वो बेसिक है। ऐसा ना हो कि उस एसिड से हमारा पेट ही जल जाए। एसिड तो एसिड है, तो उसको बचाने के लिए क्या बेसिक चीज चाहिए म्यूकस. जो पेट को बचा के रखे। तो म्यूकस क्या करेगा? सर मेड अ कवरिंग. इसलिए एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, ये भी स्टमक में ही है। नहीं वो अच्छी. सो इट प्रोटेक्ट्स, हाँ सही है, इस चीज को लिखो, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ, इनर लाइनिंग, किसकी इनर लाइनिंग को? स्टमक के, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम HCl. अच्छा, ऐसा कभी आपने देखा है कि जैसे हाथ में ग्रीस लग गई है, फैट लग गया, तो साबुन से धोते हो? कभी नहीं। हाँ बहुत देख, यही तो बाइल जूस करता है। बाइल जूस साबुन है, और जो तुमने तेल खाया है ना, अगर उसमें साबुन मिला दो तो क्या छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे, तेल के टुकड़े। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को वो किसमें तोड़ेगा? जैसे आप क्या है, तेल डालो मिक्सी में और साबुन डाल दो, साबुन पानी, तो क्या छोटे छोटे तेल के टुकड़े बन जाएंगे? साबुन डालने से नहीं बन जाएंगे। तो बताओ, ये है बाइल डक्ट। क्या ये लीवर में होता है बाइल डक्ट, गाल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर में और इसमें छोटा सा डक्ट है, छेद है, और उससे ग्रीन, येलोइश ग्रीन जूस निकलता है। वो जूस जो होता है वो एक तरीके का सोप है, बाइल जूस ग्रीन कलर का है। और वो क्या करेगा ये बता दो? सर डाइजेस्ट करता है फैट को. छोटे छोटे पार्टिकल्स। यही तो बात है, छोटे छोटे पार्टिकल में क्यों तोड़ेगा? जिससे कि आगे कोई उसे डाइजेस्ट कर दे। कौन फैट को डाइजेस्ट करता होगा? अच्छा, सर सर एक चीज पूछो सर, ये ब्लू ब्लू क्या है? क्या? ये ब्लू ब्लू सही है ये तो पता नहीं है क्या चीज है, सर, अगर इसका- ये फर्जी है। सर बताइए ना नहीं, ये कुछ नहीं है। सर, आपको पता नहीं है, दूसरा वाला दिखा दे। दूसरे वाले वो तक वो ना उसमें का है. वो जो कहीं नहीं है, वो दूसरा वाला मॉडल उसमें नहीं बनाई है। अब वो उसमें कलर का भी हो सकता है, ये पैंक्रियाज हो, लेकिन उसने अब येलो कलर का नहीं देगा, ऐसा कर दिया। तो करने वाले तो मजदूर होते हैं ना। वो जो ऐसे पत्ती ये? जैसा लग जाए, आपको लगता है। अब यही पैंक्रियाज तो ये कुछ है, सही है। इसका चक्कर में मत पड़ो, ये कुछ है नहीं। अच्छा, अब ये बताओ, कुछ नहीं है ना, आप इसको तीसरा चीज क्या है? ऑर्गन। ये बताओ, गाल ब्लैडर क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ बाइल जो स्टोर करता है बाइल जूस को। All जो तो है उसमें है, उसमें ऐसा कुल्हड़ बना हुआ है और उसमें जूस है, और वो निकलता है क्या?
हाँ उसी को तो डक्ट कहते हैं। हाँ बहुत सारे घड़े हैं, उसमें से जूस गिरा था, तो ये क्या निकालेगा बताओ? बाइल डक्ट। बाइल जूस। हाँ फ्रॉम बाइल। बाइल डक्ट, गार्ड ब्लैडर में बाइल डक्ट है, ये हाँ। डक्ट है, इस चीज को क्या कहेंगे? डक्ट। बाइल, और ये बाइल जूस बना है, यस हैं? उसी में रहता है, ये जो ग्रीन ग्रीन है इसी में रहता है। बनाता है, ये तो एंजाइम्स है, प्रोटीन है। हैं? लीवर के अंदर एक ये अलग से ऑर्गन। अच्छा अब बताओ बाइल जूस का काम क्या है? टू ब्रेक डाउन फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। टू ब्रेक डाउन बिग मॉलिक्यूल इनटू लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू किसमें? स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स। ग्लोब नहीं होता है, उसी से बना है। अच्छा अब ये बताओ पैंक्रियास क्या काम करेगा? रिलीज करेगा, पैंक्रियास एंजाइम्स रिलीज यहीं भी करेगा, रहेगा कि नहीं पता नहीं। पैंक्रियाटरी। अच्छा इसमें ट्रिप्सिन है पैंक्रियाटिक और पैंक्रियाटिक अमाइलेज है और लाइपेज। और लाइपेज है। सर Trypsin क्या? LIPS नहीं होगा? हाँ? LIPS हाँ ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? सर ये प्रोटीन को बचा हुआ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। रेस्ट ऑफ प्रोटीन into amino acid। इनटू, सर ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे हो ना? ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सर, सिस्टम। अब प्रोटीन- इसी को अब हम एक साथ लिखा देंगे आपको। सर प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनटू नहीं सर, इन स्मॉल। ब्रेक डाउन रेस्ट ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। अच्छा अब ये बताओ पैंक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक डाउन रेस्ट ऑफ। Rest of starch बहुत अच्छा। हाँ स्टार्च इनटू breakdown of fat। सर आप इतना लिखवा रहे हो एग्जाम में, तो मतलब सर बुक में तो बस आपने क्वेश्चन आंसर क्या रहा है वही आएंगे। अभी इसमें से कुछ पूछेंगे, आज जो पढ़ा उसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। हैं? ये इसमें पूछने लायक है ही नहीं संडे कुछ। टेस्ट। हाँ, अभी जब इसको एक साथ समराइज करेंगे ना एसिमिलेट, सर बता दीजिएगा एक बार क्या पूछा। आप जो पूछना हो वो पूछ लें, ठीक है कि So नहीं? lipase का ये सब मतलब- आपकी जानकारी के लिए, अब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा कि न्यूट्रिशन क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। सर आज का नहीं पूछेंगे ना कुछ भी। So breakdown of Lipase क्या fats करता है? into fatty acids and glycerol to break down leftover fat molecules into सही है, ब्रेक डाउन, ठीक है। ये फैट ग्लोब्यूल्स या स्मॉल ग्लोब्यूल्स, बताओ किसमें तोड़ेगा? fat into fatty acids एंड ग्लिसरॉल। glycerol ग्लिसरॉल भी है ना, उल्टा चलो उस पे। ब्रेक्स डाउन दैट इज स्मॉल ग्लोब्यूल्स व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। सब वो अमाइलेज है या फिर AMY AM है एमाइलेज, वहाँ भी एमाइलेज है। हाँ इनटू और सर एमाइलेज माउथ में भी होता है ना, हाँ। जो स्टार्च को शुगर यहाँ से निकल रहा है वो सलाइवा में, तो सलाइवी एमाइलेज है, पैंक्रियाटिक Pancreatic ठीक है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, बस इतना नोट करो। सर बताएं इसके बाद। बस इसके बाद घर है आपका, इसके बाद क्या है? सब breakdown and digest में difference क्या है? अब ये जो हमने बताया ना, ये बहुत जगह काम आएगा। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी ये काम आएगा। बोलो क्या पूछेगा? Breakdown का digest करने में difference है। यही बात है, ब्रेक डाउन ही डाइजेशन। छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो डाइजेशन नहीं किया, अक्सर में चला गया। हाँ, इतनी चीज अगर याद करना हो तो याद कर लेना, यही काम किए बस। इस ऑर्गन से क्या निकल रहा है, ठीक है ना? Thank you, sir. वेलकम। खेलने के लिए